So we are going to learn Facebook marketing today, and that is being scheduled and organized, sponsored by Margdarshan Guru, and we all would remain here for next 1 week. I mean, the course duration is 1 week, but the classes would happen. 6 classes are there, but in case it is required to extend, the classes can be extended. The motive is to add a skill in our personality so that we can learn it, we can use it, and there is no any motive to complete the course only. If this course goes for the months, then we are I mean able to continue this for the months long, and till the time everyone learn whatever is required basically to do Facebook marketing and Instagram marketing. So this is the objective, that how you can use the power of this marketing place, that is Facebook and Instagram, the complete Facebook family, and that can be used fully for your business, and you can get the benefit of this. There would be total 6 lessons, and the class would happen daily, almost daily. So in case, and Sunday would not be any class. संडे को कोई क्लास नहीं होगी, और बाकी क्लासेस डेली होंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे क्लासेस लाइव ही होंगे। और कोई बहुत जरूरी हुआ तो आपको एक वीडियो लेसन मिल जाएगा, अदरवाइज द क्लासेस वुड हैपन लाइव। Every class would be recorded, and you will get that class next morning by 10 or 12 a.m. So the recording, in case you skip the class, then you can go through, you can watch the recorded lesson, and you can put your queries either in the WhatsApp group, or you can call us between 10 to 12 in the morning. So except Sundays, all 6 days, me and Satya both are available to take your calls for your queries. And the very mandate part of this course is that you have to perform assignments before the next class. Please do whatever is being asked, or whatever assignment is being given in the previous class, and that would be hardly 15, 20, 30 minutes practical assignment you have to do on Facebook or on paper, so that you can make it learn. And the support, 2 hours daily, and one class on Saturday night 9 p.m. So that is always available even after the course gets complete. And then after, you can ask unlimited questions, queries regarding Facebook, and any topic, any question on digital marketing. Whatever we have the knowledge, we are ready. We are ready to support you. You can ask anything. And what would be the course content for this? And there would be 6 lessons. In first lesson, which is today, and we are going to cover sales funnel, goal identification, and budgeting. So that is the basic intro lesson, wherein we have to create the foundation for Facebook marketing. So that would be covered today. And in next lesson, that is tomorrow, and in that particular lesson, we are going to cover Facebook and ad domination. So how you can create Facebook ad manager, Facebook page, and how to create one ad. That creativity part will be covered tomorrow. So please, that class is very important. So everyone is recommended to attend tomorrow's class. And on third lesson, this will happen on Monday. Sunday would not be any class. On Monday, Facebook event boosting, how you can boost event, how you can target your uh, audience, and how you can track and monitor your performance of ads. And in fourth lesson, that would happen on Tuesday, the Facebook newsfeed and organic reach, how you can do it without making expenses, how can use Facebook and Instagram without making expenses useful for your advertisement. And the next lesson will happen on Wednesday, Facebook Live and Facebook groups. What is their importance? How you can create, how you can use this for your community building. And in last class, that would be Instagram marketing. It generally will be covered in one class, one day. And if it is required, then we can take 1 or 2 classes more if it is required.
If we could not cover the syllabus in these 6 lessons, 6 days, then we can take 1 or 2 classes more on this. So that will remain the criteria of this course. And what is going to cover today? So for today, there are total 5 topics, and I'll go slow for this. So the first one is dominance of Facebook, why we are learning here. So why it is needed that we all are learning from different countries, different states, different age group, different Facebook. So what is in it like this, so that we are going to study this, we are going to learn this. So that one. And second is audit for Facebook presence, what you are doing so far at Facebook. So that is to be checked. And third, how the Facebook marketing works actually. So that phenomena we have to learn, we have to share today. And fourth one is fixing your goal, what you are going to achieve with this Facebook marketing. And topic 5, fixing your customer persona. Who is your customer? So what is the category of that particular customer clientele? So that is going to be fixed. So let's start. Dominance of Facebook. That's a topic 1 today. क्यों हम Facebook पढ़ रहे हैं? Facebook पढ़ने की हमें क्या जरूरत पड़ी? तो चलिए समझते हैं इसको बहुत आराम से, और मैं रिपीट करके आपको बताता रहूंगा। मार्केट में 2 ऐसे मार्केट प्लेस हैं, दुनिया में 2 बहुत पॉपुलर मार्केट प्लेस हैं जो ट्रेंड में है। दोज आर ट्रेंडिंग इन मार्केटिंग। सो मे नो विच दीज 2 मार्केट प्लेसेस आर। ऐसे कौन से 2 जिएंट हैं, ऐसे कौन से 2 पावर हैं, ऐसे कौन से 2 मार्केट प्लेस हैं, ऐसी कौन सी 2 मार्केट प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के लिए जो बहुत पॉपुलर है। मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में प्लीज पुट योर ओपिनियन। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखें कि आपको कौन सा लगता है, ऐसे कौन से 2 मार्केट प्लेस हैं, ऐसी कौन सी 2 पावर हैं। फेसबुक एंड व्हाट्सएप, लक्ष्मी श्रीनिवास जी, हाँ यू ट्राइड वेल मैम, बट सबसे पहले आपने आंसर दिया और आधा आंसर आपका ठीक है। सो ग्रेट, थैंक यू, सो ग्रेट। चलिए बाकी सबसे चाहूंगा कुछ भी आप अंधेरे में तीर लगा सकते हो। जयश्री जी ने कहा इंस्टाग्राम, आपने थोड़ी कोशिश की। सोशल मीडिया, अंशुका रहेजा जी ने तो पूरी कोशिश कर दी, वाओ ग्रेट। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बायर एंड सेलर, वंडरफुल। विशंबर लाल जी, ग्रेट ग्रेट, सब ट्राई कर रहे हैं। मैं जब तक सबकी तरफ से एक आंसर नहीं आएगा ना, सो आई विल नॉट गो अहेड। सब लिखो, प्लीज लिखो आप। यस फेसबुक, हाँ मोनिका जी ने लिखा, ग्रेट, आधा आंसर आपका भी है। यस ऐसी कौन सी 2 बड़ी ताकतें हैं जहां मार्केटिंग डोमिनेट हो रही है? यस ऑनलाइन मार्केटिंग। यस अली सदाकत जी, बिल्कुल आपने तो पूरा स्वीप शॉट खेला सर। यात्री शुक्ला, आपका इंट्रोडक्शन नहीं आया, प्लीज यात्री शुक्ला जी आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर चैट बॉक्स में लिख दें। एंड ट्विटर, नॉट श्योर बट आई डोंट यूज दिस। यस ग्रेट जयश्री जी, आपने ट्राई किया, आप ट्राई कर रहे हैं इसलिए आपके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद है। ठीक है, थैंक्स, आपने कदम बढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है। फेसबुक एंड से इंस्टाग्राम, साई जी ने लिखा, एंड नवीन जी ने लिखा इंस्टाग्राम यूट्यूब। ओके ग्रेट, सो आई एम गोइंग अहेड। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये 2 चीजें आपके सामने आने वाली हैं स्क्रीन पर, और आप देखेंगे ये 2 चीजें हैं जिन्होंने दुनिया की तस्वीर बदल रखी है एडवर्टीजमेंट के मामले में। द फर्स्ट वन इज गूगल एंड सेकंड वन इज फेसबुक। बाकी सब इनसे पीछे हैं। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम कहा था, जिन लोगों ने व्हाट्सएप कहा था, वो सब फेसबुक फैमिली का ही पार्ट है। सो दैट इज द फेसबुक फैमिली नाउ। एंड सेकंड इज गूगल एड्स, बहुत मेजर रोल है। ये 2 बड़े जिएंट हैं मार्केटिंग के। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम में से ज्यादातर लोग हम सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, बट वहां एक प्रॉब्लम है, वहां हमेशा कस्टमर और क्लाइंटेल की क्राउड लिमिटेड है। यहां अनलिमिटेड लोग हैं, देयर इज अनलिमिटेड स्कोप। ऑलमोस्ट एवरीवन हु owns a smartphone or a computer and is connected with the internet is a part of either Google or Facebook or both। या तो एक है उनके पास या दोनों हैं, और ये इन्होंने कोई छोड़ा नहीं है।
जिसको इन्होंने पकड़ा नहीं हो, जिस पर इसकी ग्रिप ना हो। और दोनों पर ही मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है, दोनों की मोटी कमाई। दे आर अर्निंग बिग अमाउंट। द मेजर सोर्स ऑफ देयर अर्निंग, देयर बिजनेस इज एडवर्टीजमेंट। दे हैव a pool of people, so they put some freebies to the people to connect. गूगल ने और फेसबुक ने बहुत कुछ मटेरियल आपको फ्री में दिया, इतनी सारी सुविधाएं आपको फ्री में दी हैं कि आप उनके साथ जुड़ गए। और जब भीड़ उनके साथ जुड़ गई तो उन्होंने भीड़ से पैसा कमाना शुरू कर दिया, और आज वो भीड़ से पैसा कमा रहे हैं। भीड़ से पैसा कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि हम और आप जैसे लोग भीड़ में से अपने ढूंढ रहे हैं। भीड़ में से अपने, अपने मींस कस्टमर्स, क्लाइंट्स, द पीपल हु कैन बाय अस, द पीपल हु कैन बाय आवर प्रोडक्ट, आवर सर्विस। कहां मिलेगी? इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगी। कोई ऐसी जगह नहीं है जो इन दो मार्केट प्लेस से बची हो। हर आदमी, ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज एक्सेसिंग इंटरनेट is part of either community of Facebook और Google। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है? अभी तक हम फ्री के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे थे, अब हमें क्या करना है? पेड प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करना है। इस पावर को हमें यूज करना है अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। सबसे बढ़िया ब्यूटी यह है कि यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, यू कैन डू इट फ्रॉम योर हैंडसेट, योर मोबाइल हैंडसेट, your computer, your laptop, from your office, your house, your bedroom, anywhere you are, you can promote your services through these two major platforms। तो आज हम इनमें से एक को पढ़ने जा रहे हैं। मैं इन दोनों में से छोटा सा फर्क बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सबसे पहला गूगल है। गूगल इज लिटिल कॉस्टली देन फेसबुक। अगर आप पेड एडवर्टीजमेंट की तरफ जा रहे हैं, देन प्लीज ट्राई taking Facebook first, then you can go to the Google ads। पहले Facebook को पूरा डोमिनेंस लो, Facebook को पूरा पकड़ो, उसका जूस निकालें, फिर आप गूगल की तरफ बढ़ें। गूगल कंपेरेटिवली कॉस्टली है। यहां पेड सर्च होती है, मींस पीपल सर्च यू एंड द टारगेट इज बाय इंटेंट। लोग कीवर्ड डाल के सर्च करते हैं, और जब आप सर्च में आते हो, then if somebody clicks on your link, Google ask you money। जितने क्लिक्स आपको होंगे गूगल उतने पैसे लेगा, एंड दैट इज कॉल्ड PPC, पे पर क्लिक। जब तक आपके लिंक पर, आपकी एड पर क्लिक नहीं हुआ, गूगल इज नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग। और वो कब होगा? जब लोग आपको ढूंढते आएंगे। समझना, लोग आपको ढूंढते आएंगे। और लोग आपको कब ढूंढेंगे? जब आपको कुछ न कुछ, या तो पॉपुलैरिटी होगी लोगों में आपकी, आइदर यू आर एडिक्वेट पॉपुलर, और यू आर गिविंग सम वैल्यू, एंड you have put some keywords over there, and people are coming there and searching something, and for their purposes, their requirement, their pain relieving, and then you are coming in the search, and then you are selling something, they are buying something। So this way, this comes generally inbound। Inbound means the people who are searching from outside। तो ऐसे करके गूगल की एड काम करती है। वहीं आपका जो फेसबुक है वो बिल्कुल अपोजिट है इसके। ये क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग है जहां हम सब जुड़े हुए हैं। हम सब ने अपने इंटरेस्ट वहां रखे हुए हैं, हमारी कैटेगरी उसने पूछ ली है, हमारा इंटरेस्ट उसने पूछ लिया है, एंड नाउ जो भी एडवर्टीजमेंट रन करते हैं वो वहां अपना इंटरेस्ट और कैटेगरी के अकॉर्डिंग रन करते हैं। और फेसबुक क्या करता है? अपनी उस क्राउड में, उस कैटेगरी में उनका एड रन कर देता है। तो अब लोग सर्च नहीं करते, वेर इन लोग नेटवर्किंग के लिए आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, कनेक्शंस के लिए आ रहे हैं, कनेक्ट होने के लिए आ रहे हैं, और वहां उनके पेजेस पर आपकी एड दिखाई दे रही है, वहां एड दिखाई दे रही है। तो दोनों में डिफरेंस है। वहां एक जगह सर्च है, इंटेंट सर्च है, टारगेट बाई इंटेंट है, और दूसरी जगह टारगेट बाई इंटरेस्ट और डेमोग्राफी है, और डेमोग्राफी। तो ऐसे करके गूगल और फेसबुक दोनों काम करते हैं। अच्छा, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन गूगल और फेसबुक। In case you have any question, you can put in the chat box and Satya will try to answer you, otherwise I'll answer it। तो ऐसे करके ये दोनों हैं। आज हम फेसबुक पर चल रहे हैं।
तो फेसबुक पे मार्केटिंग क्यों सीख रहे हैं हम? व्हाई फेसबुक मार्केटिंग? चलिए बोलते ही क्वेश्चन आ गया। यस, यात्री शुक्ला जी ने लिखा है, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद एंड रिसेंटली कंप्लीटेड माय बीबीए, सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट एच सेपियंस एंड डॉक्टर संदीप रिकमेंडेड दिस कोर्स। वंडरफुल, ग्रेट यात्री जी, नाम अच्छा है आपका। एंड चलिए, फेसबुक मार्केटिंग क्यों? बिकॉज अ ग्रेट क्राउड इज देयर, बहुत बड़ा नंबर लोगों का वहां है। 2.60 billion people are there, 2.60 billion, and 11% increase every year. हर साल 11% बढ़ते हैं। पहले तो शुरू शुरू में मजा आ रहा था, फेसबुक पे हम जुड़ रहे थे, हमें नहीं पता फेसबुक हमें फ्री में क्यों ये नेटवर्किंग दे रहा है। बाद में पता चला कि हमारा डेटा यूज कर रहा है और हमें ऐड दिखाएगा, और आज वो वक्त आ गया है जब हम ऐड देख रहे हैं। सो द फेसबुक इज द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म globally with 2.6 billion active users, and nobody, no any other platform has a big crowd than this Facebook. सबसे ज्यादा क्राउड फेसबुक पर है, इसलिए आज हम यहां फेसबुक सीख रहे हैं। यूट्यूब पर भी 2 बिलियन है, बाकी सब का नंबर बाद में आता है। ये तो दुनिया की आंकड़े हैं। इंडिया में फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर है, सबसे ज्यादा यूजर है। यूएस भी हमसे पीछे है। सो फेसबुक इन इंडिया हैज द मोस्ट फेसबुक यूजर्स विद ओवर 260 मिलियन। 260 मिलियन यूजर्स इंडिया में हैं, ये स्टेट्स हैं इनके। और इसमें से फेसबुक पर सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप है, दैट इज 18, 20, 24, 25, 34, 35, 44, यानी यूथ, यंग एज के लोग जो हैं वो फेसबुक पर हैं। तो अगर आपका बायर भी इस एज का है तो आप बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं। और इसमें से 78.1% मैन है, 21.9% वुमेन है। ये 2019 का डेटा है, अभी इसकी तस्वीर और बदली है और बढ़ गया है। तो अब समझ में आया कि फेसबुक की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी भीड़ है वहां। अगर आपने इसको थोड़ा थोड़ा यूज करना शुरू किया, इन केस यू स्टार्ट यूजिंग द पावर ऑफ फेसबुक, so you can grab a lot of business for you and for your business, so a lot of growth potential is there. So अब हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं इसमें से अभी तक और कितना करना बाकी है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम स्किल ऐड करने जा रहे हैं, whenever we are going to learn something, so we have to check where we are and what is our target, where we should go with this learning. तो आज हम कहाँ हैं? तो आज मैं आपको ये शेयर करूं कि फेसबुक के साथ बहुत सारे ब्रांड्स ने, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अपना बहुत मोटा मतलब काम बढ़ाया है और इसकी पावर यूज की है। इंडिया में अगर मैं 2-4 बड़े ब्रांड्स की बात करूं तो जोमेटो, ओरियो, फ्लिपकार्ट, ओएलएक्स, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जिन्होंने फेसबुक की इस पावर को यूज किया है। तो मैं आपको ओरियो का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं जो मेरे पास है। ये 1-1 मिनट के ओरियो ने वीडियो बनाए और ये फेसबुक पे रन किए। देखना कितनी परफेक्ट इसकी पकड़ है मार्केट पे। हाय, आ गए। साउंड आ रही है सत्या उधर? यस सर, आ गए। यस सर। अब फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। आपकी मीटिंग कैसे थी? गुड। खाओ ना, ठंडा हो जाएगा। चलो अभी ट्विस्ट करो। क्लिक करो। खाना अच्छा है। आपके लिए तो बना है। अच्छा, अब दम करो। अरे अरे, ऐसे नहीं तो आ करो। मम्मी को बुलाओ। ओनली ओरियो फ्रॉम कैडबरी। तो ये हाँ, लॉजिक ऐड बनाई है उन्होंने। और ऐसे ही बहुत सारे इनकी जो इंस्पिरेशन है वो हमारे फेविकॉल से है। पीडीलाइट ने बहुत अच्छे एड्स बनाए हैं। 1-1 मिनट के ऐड हैं, ये आप भी बना सकते हो।
रादर इसमें करेक्टर को यूज किया गया है. यू नीड नॉट टू यूज करेक्टर बिकॉज दीज टाइप ऑफ एड्स मे बी लिटिल एक्सपेंसिव, बट यू कैन क्रिएट दिस ऑन एनिमेशन, यू कैन क्रिएट दिस ऑन इन्फोग्राफिक्स. आप इन्फो पे क्रिएट कर सकते हो, एनिमेशन पे कर सकते हो, और उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है. 1 मिनट का एड, वीडियो एड आपकी तस्वीर बदल सकता है. सो दिस वे आप भी ऐसे ही ऐड क्रिएट करके फेसबुक की पावर को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं. अभी ये देखना है कि आप अभी तक क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग सो फार एट फेसबुक. सो आई जस्ट वांट टू नो, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज योर practice with Facebook, what you are doing. Are you putting some post over there? Are you putting some videos over there? How you are using that, either for your personal networking or you are using something for your business purposes. So whatever your exercise, please put in the chat box. Just have a profile that I don't use very often. Jaysri ji, great. So everyone, please write here. Waiting for you. Great, wonderful. Ali Sadakat ji, I'm posting posts and videos for our products. So great, wonderful, sir. So what kind of videos you are posting, sir? In case you are comfortable, you can put in the WhatsApp group which we have, or you can send it personally. Till now, so who is the till now? Just for personal, I have my Facebook page for business, but not know how to use it. Anushka Raheja ji, and just using to see pictures and videos in free time. Bisambar Lalji, Monica ji, posts of our products. Wow. Putting some images in Facebook page of my clinic. Dr. Millie, great. Live talk of Dr. Alka, small videos about our services. Great. I have Facebook page to promote my stock market services. Yes, Sai ji, आप थोड़ा advanced form में हैं यहाँ. Yatri Sukla ji is not active on Facebook. Video related to introduction of educational product. Ali Sadakat ji, so great. चलिए, आप सबकी एक्सरसाइज है अभी. हम सब ऑलमोस्ट ऑन फुट हैं. अभी हम अपनी पैदल यात्रा पर हैं और बहुत कुछ बाकी है आगे जाना. तो अब एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे. सो ग्रेट. तो आज हम पहला स्टेप आगे ले रहे हैं. आज अपना फाउंडेशन ले करने वाले हैं हम. तो आज फाउंडेशन ले होगा, कल उस पर हम क्रिएटिविटी पोर करेंगे. तो कल की क्लास में भी प्लीज सब रहना. चलिए, आज समझते हैं कि ये काम कैसे करती है, फेसबुक कैसे हमें हेल्प कर सकती है, फेसबुक का करिश्मा क्या है, एंड हाउ दिस कैन हेल्प अस. सो प्लीज बी विद मी फॉर फर्स्ट 2-3 minutes. So this is a blank page. Now the Facebook is going to start its working. So how the business phenomena is and how this Facebook can help us in our business. So let's go step by step. This is you or me or the service provider or the seller. Okay, so just a minute. So is that okay now? So is there any patch? Yes, sir. अभी ठीक है? अभी पैच है सर. अभी भी पैच है? ऊपर है नीचे? नीचे है सर. अभी नीचे ले आया हूं मैं उसको. वो एक्चुअली मेरा वो बार है, मेन्यू बार. तो चलो नीचे, कोई ज्यादा ये डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको. जस्ट ए मिनट. अगर ये रिमूव, अभी साइड में भी आ गया सर. साइड में भी आ गया. जस्ट ए मिनट. मैं स्क्रीन शेयर करूं यहाँ से सर? सत्या होगा नहीं एक्चुअली, उसमें एनिमेशन है. मैं 1 मिनट करता हूं उसको. अभी हट गया. ठीक है सर. So yes, is that removed now? Yes sir. अभी नहीं आएगा. So this is you on your left side, and on your right side, this is the
crowd which is available on Facebook. These are 2.60 billion people. So that is गंगा के एक किनारे ये खड़े हैं और गंगा के दूसरे किनारे आप खड़े हो. And there is no connection. There is no connection. So you are in this impression that there is a connection, but it is not. Why? Because you have a Facebook account, you have a Facebook ID, wherein you have certain handful people. So why I'm saying this handful? Because one Facebook ID can have maximum 5,000 people. 5,000 लोगों से ज्यादा वो नहीं रख सकती. और जितने लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, दे आर योर फ्रेंड्स, योर नेटवर्किंग पीपल, नॉट ऑल बिजनेस पीपल और योर कस्टमर्स. जनरली 5,000 लोगों में से आप बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं निकाल सकते. आप इस इंप्रेशन में है कि मैं पोस्ट डाल रही हूं, वो पोस्ट जरूर जा रही है, बट वो आपके उतने ही लोगों को जा रही है. Those handful people are available on your page. आपके पेज पर जो आपके फेसबुक वॉल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक अकाउंट पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक जा रही है. और अगर वो बहुत पॉपुलर चीज है, बहुत अच्छी लगने वाली चीज है, सो दैट इज बीइंग शेयर्ड फर्दर. बट अगेन देयर इज अ लिमिटेड पीपल ऑन द अकाउंट ऑफ द पीपल हु आर कनेक्टेड विद अस, क्योंकि हर आदमी के पास 5,000 से ज्यादा लोग हो ही नहीं सकते. और मार्केटिंग ये कहती है कि 5,000 लोगों में से आप 1% लोग निकाल पाओगे जिनको आप बेचेंगे. तो 5,000 लोगों में से अगर मैं 1% लोग निकालूं, उतने आपके कस्टमर बन सकते हैं. मींस यू हैव लिमिटेड पॉसिबिलिटी, वेरी लिमिटेड पॉसिबिलिटी. सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन और अप टू योर एक्सपेक्टेशन थ्रू these handful people. तो एक बहुत बड़ा मिथ हमें अपना यहां निकालना पड़ेगा कि फेसबुक पे जो कुछ हमारी शेयरिंग है, नॉट गोइंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, वो बहुत कम लोगों तक जा रही है. सिर्फ फेसबुक ने हमारा अकाउंट डेटा कलेक्ट करने के लिए वहां हमें अकाउंट दिया था फ्री में, ताकि हम अपने सारे लोगों को उस पर जोड़ लें. अब क्या है, उसके पास 2.6 बिलियन की जो भीड़ है, अगर आपको उस भीड़ तक जुड़ना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे. अब वो कैसे जोड़ता है देखना. यहां एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ ये भीड़ है जिसमें आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स खोए हुए हैं. सो यू डोंट नो कि इसमें कौन आपका कस्टमर है और कौन नहीं. दे डू नॉट नो यू. ये लोग आपको नहीं जान सकते या नहीं जानते, या जरूरी नहीं आपको जानते हो, या बहुत कम लोग आपको जानते होंगे. These people do not know you or your brand, your services, your product. They are unaware with that. और ये सब लोग आपके प्रोडक्ट को जानने के लिए फेसबुक पर नहीं जुड़े हैं. ये बात पूरी अच्छी तरह समझना. ये लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपनी नेटवर्किंग के लिए फेसबुक पर जुड़े हैं. And they do not know you. Only very handful people are there who know you. And they cannot be your customers. I mean, they all cannot be your customers. उनमें से कुछ लोग हैं जो आपके कस्टमर बनेंगे. ये लोग आपको नहीं जानते, एंड वाइस वर्सा, यू डू नॉट नो देम. आप भी इन लोगों को नहीं जानते. और असली बिजनेस अब यहीं से आना है. आप इन्हें नहीं जानते, ये आपको नहीं जानते, बट टू ग्रो इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट अ कनेक्शन, टू मेक अ कनेक्शन विद दीज पीपल, to sound your product, your services in these people. इन लोगों में आपको अपना बिगुल बजाना है, और तब आपका बिजनेस यहां से निकल सकता है. एंड फेसबुक क्या करेगा, अब हमसे पैसे लेकर इसे जोड़ेगा. मतलब पैसे लेकर भी जोड़ सकता है, कुछ फ्री में हेल्प हो सकती है, बट बहुत लिमिटेड. पेड एड हमें इन लोगों तक जोड़ेगी, बट पेड एड का एक क्राइटेरिया हमें नहीं पता. और अगर हमें क्राइटेरिया नहीं पता तो हम अपना पैसा गंवा देते हैं. तो यहां हमें क्या करना है, बहुत ही जुडिशियसली, लॉजिकली हमें इन लोगों में से, इस 2.6 बिलियन लोगों में से अपना जो आइडियल क्लाइंटेल है, जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव कस्टमर है, उसे निकालना है. और ये मेरे लिए फेसबुक निकाल के देगा.
तो ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। अब थोड़ा लॉजिक कम टेक्निकल होने शुरू होंगे हम। तो देखिए ये कैसे होगा। आप क्या करेंगे, आपने एक पोस्ट डाली, समझना अब यहां से आगे बहुत समझने वाली बात है। Those who think that they are not able to take it in Hindi, so I can repeat it in English, but please you can ask me for repeat it, ठीक है, as many as times you want it। जब तक आप इसे नहीं समझते आप मुझे रोक कर पूछ सकते हैं, and I would happy to deliver it again and again till the time you get it। But this concept, in case you could get, so the journey ahead, the journey further will become very easy to all of us। हम सबके लिए आगे की जर्नी बहुत सरल हो जाएगी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। पोस्ट बूस्ट, अभी तक जो पोस्ट आप डाल रहे हो दैट इज गोइंग टू द लिमिटेड पीपल। इन केस वी वांट टू एक्सीलरेट, वी वांट टू spread it in more people, then we have to boost our post। Facebook can boost this post, Facebook can accelerate this post। ये Facebook हमारी पोस्ट को बहुत सारे लोगों में बूस्ट कर सकती है। सेकंड, ऑर्गेनिक पोस्ट। ऑर्गेनिक पोस्ट द वे वी आर डूइंग इट, वो हमारे फ्री में जिन लोगों को जा रही है, इट शुड गो एज इट इज। एंड अगर उसको मुझे ज्यादा लोगों में भेजना है तो मैं पेड एड चला के बूस्ट करूंगा। पेड इवेंट्स, in case you are organizing some events, then you can organize paid events and Facebook can advertise your events on its platforms and it can collect money on your behalf, and after collection it will, and Facebook will deliver this amount in your bank account। तो ये भी आपको Facebook करता है, पेड इवेंट आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक इवेंट्स, पेड इवेंट्स कर सकते हो। ऑर्गेनिक इवेंट्स का मतलब है जहां पैसे नहीं लगाने, आप बिना पैसे के इवेंट्स, बट वो फिर अगेन लिमिटेड लोगों में जाएगी। पेड इवेंट्स ज्यादा लोगों में जाएगी। लाइव इवेंट्स यू कैन गो फॉर, ये भी फेसबुक आपको करने देता है। ड्राइव ट्रैफिक, इन केस यू हैव अ वेबसाइट और यू क्रिएटेड अ लैंडिंग पेज। आइदर केस, आपने कोई लैंडिंग पेज बनाया, आपका कोई सेल्स फनल आपने क्रिएट किया, आपका कोई वेबसाइट है एंड यू वांट टू ड्राइव अ ट्रैफिक एट योर पेज, तो वो काम फेसबुक बहुत अच्छी तरह से करता है। तो फेसबुक आपका ड्राइव ट्रैफिक कर सकता है, पोस्ट को बूस्ट कर सकता है, पेड इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकता है। ऑर्गेनिक पोस्ट और ऑर्गेनिक इवेंट्स आपको पहले से ही पता है। लीड जेन, इन केस इस भीड़ में से आपको वो लोग निकालने हैं जो आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं। इन केस यू वांट टू हैव द पीपल हु आर रियली वांट योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, और दे आर सीकिंग फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक यू हैव, सो फेसबुक कैन प्रोवाइड यू द डेटा ऑफ सच पीपल। आप जब ऐसा एड रन करेंगे, देन पीपल विल कम ओवर देयर, दे विल क्लिक ओवर देयर on your advertisement and they'll fill their information, their phone number, their name, their email ID, their date of birth, and you can collect that data and you can contact those people later on। I mean after collection this lead contact, आप उनके साथ कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काम फेसबुक करता है आपके लिए। एंड लाइव पोस्ट, आप लाइव पोस्ट डाल सकते हैं, इवेंट्स को बूस्ट कर सकते हो, जो आपने इवेंट फ्री में डाली उनको बूस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन सेल कर सकते हो, मींस यू कैन क्रिएट योर ऑनलाइन स्टोर ऑन फेसबुक, यू कैन पुट योर प्रोडक्ट ओवर देयर, you can put your event over there, you can put your knowledge product over there, you can put your intellectual property over there, you can put your ebook over there, you can put your research paper over there, or whatever you have created. In case you have some product or service, you can put there for booking and Facebook can sell it for you. आपकी 2.6 बिलियंस की भीड़ में वो आप जिन लोगों को बेचना चाहोगे उन लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखाएगा, जिनको पसंद आएगा वो वहां से खरीद सकते हैं।
तो फेसबुक ये काम भी करता है। ब्रांड अवेयरनेस, इन केस आप पॉपुलर होना चाहते हो, आप स्टार्टअप मोड में हो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो फेसबुक आपका ब्रांड अवेयरनेस कर सकता है। एंड देन वन मोर थिंग, you can create groups, you can be a part of groups. There are millions of groups on Facebook जहां बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो अनलिमिटेड कम्युनिटी वहां है। उस कम्युनिटी का पार्ट आपको बनना है या आपको नई कम्युनिटी क्रिएट करनी है, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल एंड फेसबुक कैन सर्व दिस फैसिलिटी टू यू। तो इतने सारे फीचर्स फेसबुक के हो सकते हैं और हमारी जितनी भी जरूरत है, हम में से जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, शायद हमारे बिजनेस की जितनी भी जरूरत है मार्केटिंग रिलेटेड, वो शायद सब इन कलरफुल बैंड्स में समा जाती है। सो दैट आई मीन सफाइज द नीड ऑफ आवर बिजनेस। और यही एक बिजनेसमैन की, एक बिजनेस की जरूरत हो सकती है जिस पर फेसबुक पूरी तरह खरा उतरता है। अब हमें अगले 6 दिन में ये सीखना है कि ये सारे काम हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इसमें से एक एक काम को सीखते चलेंगे और 6 दिन में इसका मेजर पार्ट हम सीख जाएंगे। आई थिंक ये चीज हमें क्लैरिटी से समझ में आई। अगर नहीं आई हो तो यू कैन आस्क मी वंस अगेन। ये हमारी फेसबुक फैमिली है और अब इसमें हम कनेक्ट कैसे होंगे? यहां हमारा प्रोडक्ट है ऑन आवर साइड और प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट बनाएंगे और एडवर्टीजमेंट को हम प्योर एडवर्टीजमेंट की बजाय हम वैल्यू कोटेड एडवर्टीजमेंट बना देंगे, जहां एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, इन्फ्लुएंसिंग हो, परसुएड करे लोगों को। ऐसा एड क्रिएट करके और हम फेसबुक के इन सारे फैसिलिटीज और फीचर्स पर उन एड्स को रन करें, तो हमें क्या होगा? इस भीड़ में, इन भीड़ में से लोग अलग अलग तरीके से कनेक्ट होते हैं फेसबुक पर। कोई लाइव इवेंट से अट्रैक्ट होगा, कोई लाइव पोस्ट से अट्रैक्ट होगा, कोई ट्रैफिक से अट्रैक्ट होगा, या हमारी जो जरूरत हो हम वही इसमें से चूज करें। हमारी क्या जरूरत है, हम क्या बिजनेस है हमारा, क्या करते हैं, और इन सब फीचर्स में से, क्योंकि इनमें से आधे फीचर्स पेड हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा फीचर हमारे लिए मोस्ट सुइटेबल है, उस फीचर को लेके हम आगे बढ़ें। तो ऐसे करके ये फेसबुक हमारे लिए हेल्प करता है, एक बहुत बड़ा इंटरफेस बनाता है हमारे लिए, जहां भीड़ में से लोग निकलकर और हमारे प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं, हमारे प्रोडक्ट को भीड़ तक पहुंचाता है। और इस भीड़ में से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी डेमोग्राफी के लोग आपको चाहिए, कौन सी एज ग्रुप के लोग आपको चाहिए, कौन से प्रोफेशन के लोग आपको चाहिए, कौन से इंटरेस्ट के लोग आपको चाहिए। ये सब फेसबुक हमें करके देता है। तो हमारे लिए बहुत इजी कर देता है हमारी बिजनेस की मार्केटिंग जर्नी को, मार्केटिंग प्रैक्टिस को, मार्केटिंग एक्सरसाइज को। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट फेसबुक का सबको समझ में आया। नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन सो फार और शुड आई गो अहेड? सो लेट्स मूव अहेड। चलिए नेक्स्ट स्टेप इसका हमें करना क्या है? फेसबुक पर जब हम एड स्ट्रेटजी बनाते हैं तो बहुत सिंपल है। फेसबुक पर हम जनरली 3 काम में से कोई एक काम कर रहे होते हैं या तीनों कर रहे होते हैं। तो वन इज अवेयरनेस। इफ वी आर न्यू इन द मार्केट और वी वांट टू स्प्रेड आवर बिजनेस टू द मोर पीपल, देन वी शुड spread awareness. In case we have some budget in our hand to spend on advertisement, then we should go for awareness. And if we are hand to mouth in our business, so we have a lot of budget, we have no budget to spread, to make an expense on awareness, then we should go directly to the consideration part or conversion part or lead generation part. तो हम अवेयरनेस कर सकते हैं फेसबुक से, कंसीडरेशन कर सकते हैं। यानी अवेयरनेस का मतलब है अपने प्रोडक्ट के बारे में हमने नॉलेज दी लोगों को। कंसीडरेशन का मतलब है लोगों को तैयार किया, नर्चर किया, उनको बम्बार्डिंग की, एड्स की बम्बार्डिंग की, उनको अट्रैक्टिव एड दिए, अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए। जब तक ऑफर्स दिए तब तक वो कंसीडर ना कर लें हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को, हमारे ऑफरिंग्स को, और जब तक वो हमें कंसीडर करके कन्वर्ट ना हो जाए। तो कन्वर्ट के लिए, कंसीडरेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, ये हमारे तीनों स्टेजेस पे फेसबुक काम करती है। और ये फेसबुक का सेल्स फनल होता है, जहां ऊपर से ये दुनिया की जो भीड़ है
वो वहां से इस ऊपर से गिरती है इस फनल में और नीचे से कन्वर्ट होके निकलती है। तो ऊपर से जो भीड़ आएगी अवेयरनेस में वो लाखों में होगी, और कंसीडरेशन पे हजारों में होगी, और कन्वर्जन पे वो सैकड़ों में होगी। तो जो लाखों लोगों में आप ऐड चलाओगे उसमें से 1000 लोग, 1 लाख में ऐड चली तो 1000 लोग कंसीडरेशन में आएंगे, यानी वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। 1000 में से 100 लोग कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट्स में से भी आपके पास 10 लोग रिटेन होंगे। तो ऐसे करके ये रेशियो होता है जिसमें फनल का मुंह ऊपर से बड़ा होता है, यानी बहुत सारे लोगों में आपको ऐड चलानी है। उसमें से एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जो आपका इंटरेस्ट शो करेगी, उनको कंसीडरेशन ऑफर्स देने हैं, आपको ऑफर देके कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट करके रिटेन करना है। यही सारा गेम मार्केटिंग में फेसबुक के थ्रू हम करते हैं, और फेसबुक हमें हेल्प करता है। चलिए अब हम अपना गोल डिसाइड करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट्स आवर गोल, व्हाट्स आवर ऑब्जेक्टिव टू लर्न फेसबुक, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले हैं। तो फेसबुक के जनरली 5 गोल हैं। आप देखें आपको क्या चाहिए। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर आपके पास कुछ बजट है मार्केटिंग के लिए स्पेसिफिक, और आप पॉपुलर होना चाहते हैं, देन यू गो फॉर ब्रांड अवेयरनेस, देन योर गोल वुड बी ब्रांड अवेयरनेस। एंड इफ यू वांट टू जनरेट लीड्स, यानी आपको उस भीड़ में से वो लोग निकालने हैं जिनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, देन योर गोल वुड बी जनरेट लीड्स। अगर आपको कस्टमर सर्विस देनी है, लोगों को फेसबुक के थ्रू कस्टमर सर्विस देनी है, तो आप कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। चौथा है ड्राइव ट्रैफिक। आप अपने वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक को लाने वाले हैं या ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो आपके पास वेबसाइट है और वहां सेल्स के लिए कुछ रखा है, आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स रखे हैं, ऑनलाइन स्टोर वहां बना रखा है, आपकी सर्विसेज बुकिंग वहां है या इवेंट्स बुकिंग वहां है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। एंड 5वां है रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप एक कनेक्ट बिल्ड कर रहे हो लोगों के साथ। तो जनरली जो रिकमेंड होता है फेसबुक यूज होती है, वो बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए करते हैं, और स्टार्टअप और स्मॉल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्री जो हैं, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स, वो जनरेट लीड करते हैं इससे, या ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, या ऑनलाइन सेल्स करते हैं। तो आप बताएं कि आपका क्या पर्पज है। प्लीज चैट बॉक्स में आप लिखें कि आपका क्या गोल है। अगर किसी को गोल डिसाइड करने में कोई मुश्किल हो तो यू कैन आस्क मी प्लीज। पुट इन द चैट बॉक्स व्हाट यू वांट टू डू विद फेसबुक। आप क्या करना चाहेंगे इसके साथ। जयश्री जी, जनरेट लीड्स, वाओ, जनरेट लीड, ब्रांड अवेयरनेस एंड लीड जनरेशन। डॉक्टर मिली, अनुष्का रहेजा जी, जनरेट लीड्स, माय गोल इज जनरेट लीड्स, ब्रांड अवेयरनेस, अनुष्का जी, वाओ। मोनिका जी, ब्रांड अवेयरनेस, वाओ, ग्रेट। ब्रिजी, एडवर्टीजमेंट। सो ब्रिजी, एडवर्टीजमेंट तो ये सारा ही है, बट एडवर्टीजमेंट का पर्पज क्या है, गोल क्या है, वो चाहिए, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। ट्रैफिक टू वेबसाइट, अली सदाकत जी, वाओ, एंड यस। यात्री शुक्ला जी, ब्रांड अवेयरनेस एंड जनरेट लीड्स। ब्रिजी, एनजीओ हेल्थ, नहीं, आप करना क्या, इस 5 चीज में से क्या करना चाहते हो, वो तो सब हम एडवर्टीजमेंट ही कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट है आपका एनजीओ हेल्थ, पर आप उस पर क्या, लोगों के कॉन्टेक्ट चाहिए आपको, या लोगों में आप पॉपुलर होना चाहते हो, या ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, 3 में से क्या हो सकता है। यस, आप सबने लिखा, ग्रेट, यस, पॉपुलैरिटी, ओके, देन ब्रांड अवेयरनेस इज वन थिंग फॉर यू। नवीन कालरा जी, दैट्स जनरेट लीड्स, ग्रेट, वंडरफुल। तो आप सबके एक क्लैरिटी हुई कि आपका गोल क्या है इसके साथ। तो अब इससे क्या फायदा होने वाला है कि कल जब हम एड डिजाइन करेंगे, then you would specifically go directly for generating leads or brand awareness. You would be clear in your mind that what you are going to do, so that if you are putting some money on Facebook advertisement, then you should get the results from there. Otherwise हमें जब तक नहीं पता कि what's our goal, what we are going to achieve with this learning, and what we are going to do with the advertisement which we have learned and put on this Facebook platform, then you are not going to have the benefit of this. तो आप बेनिफिट तब उठा पाएंगे जब हम ये जानेंगे
कि वास्तव में हमारा गोल क्या है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। अगर आपके पास पेन पेपर है तो प्लीज आप रख सकते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। आज ये 5वां टॉपिक अगर हमने कंप्लीट कर लिया, ये जो 5वां टॉपिक है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड इन केस वी कुड डू इट राइट वे, देन यू आर गोइंग टू मेक अ गुड एसेट फॉर योर बिजनेस, और बहुत सारा पैसा आप बचाने वाले हो। जो लोग बायर पर्सोना सही से डिसाइड नहीं कर पाते, वो फेसबुक मार्केटिंग में अपना पैसा गंवा देते हैं। अपना जो भी पैसा लगाते हैं वो सही जगह पे नहीं जाता। तो बायर पर्सोना डिसाइड करना आपके लिए बहुत बढ़िया जरूरत है। यानी जितना बढ़िया बायर पर्सोना आप करेंगे, जितना बढ़िया बायर पर्सोना आप डिसाइड करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपका फेसबुक एडवर्टीजमेंट देगा। तो अब हमें क्या करना है कि बहुत छोटी सी चीजें डिसाइड करनी है जो जनरली हम मार्केटिंग में हमें पता होती हैं बट बहुत स्पेसिफाई नहीं कर पाते। बट व्हाट्सएप को इसको फेसबुक को क्या करना है कि फेसबुक को सिर्फ उन वर्ड्स पर, आपके इनपुट्स पर ही वो दुनिया के 2.6 जो लोग हैं, 2.6 बिलियन, उनमें से वो वही लोग लाएगा जो आप ढूंढना चाहते हो। और अगर आपने सर्च गलत कर दी तो वो गलत लोगों में आपका पैसा खर्च कर देगा। तो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायर पर्सोना बहुत ही तरीके से हम डिसाइड करें। तो बायर पर्सोना में बहुत सिंपल सी चीजें करना क्या है। सबसे पहले बेसिक फीचर्स लेने। हमारा फेसबुक पर 2 मेजर फीचर हैं, वन इज डेमोग्राफी एंड सेकंड इंटरेस्ट। जब हम फेसबुक का पेज बनाते हैं तो वो हमसे डेमोग्राफी डिटेल्स लेता है और हमारे इंटरेस्ट पूछता है। तो जो इंटरेस्ट हम फिल करते हैं, उन इंटरेस्ट के बेसिस पे आपका एड रन होता है। ओके, ब्लैक बार फिर आया, जस्ट अ मिनट। So is that disappeared now? नो सर, अभी नहीं गया? अभी चला गया सर। चलो ग्रेट। तो हमें 2 चीजें डिसाइड करनी है। प्लीज कॉपी पेन ले लें और आपको ये एक्सरसाइज करके ना ग्रुप में डालनी है। यू हैव टू पुट ऑल दीज 3 एक्सरसाइजेस and you have to put in the WhatsApp group so that others can take the reference from this, and you should be aware with that. And in case we have any input, we have any opinion to correct your persona, we can do it. हम तब कर पाएंगे जब आप अपना डिसाइड करके रखेंगे। और ये पर्सोना बहुत अच्छी तरह से डिसाइड करना। सो यू टेक टुडेज नाइट एंड टुमारोज डे, कल का दिन आज की रात दोनों लगाओ और इस पर्सोना को बहुत तरीके से आप लिखना। इसमें 5-6 चीजें लिखनी है और बहुत आराम से लिख सकते हो, बट बहुत सोच के लिखना है। वन इज डेमोग्राफी। जब हम डिसाइड करते हैं फेसबुक ऐड के लिए तो हमें सबसे पहले जेंडर डिसाइड करना है। विच जेंडर पीपल वुड बी इंटरेस्टेड एंड आर टारगेट ऑफ माई बिजनेस। मैं किन लोगों को ये बिजनेस से फायदा पहुंचाने वाला हूं। क्या वो लेडीज होंगी या वो जेंट्स होंगे, मेल होंगे फीमेल होंगे। मेल्स को मेरा ज्यादा प्रोडक्ट हेल्प करेगा, फीमेल्स को करेगा, ठीक है। और अदरवाइज दोनों को करेगा तो मुझे दोनों लेने हैं। और अगर कॉमन प्रोडक्ट है दोनों को लेने, अगर मेल प्रोडक्ट है तो मेल को देना है, फीमेल प्रोडक्ट है तो फीमेल को देना है। तो यहाँ ये बहुत ईजी है, आप डिसाइड कर सकें। सबसे बड़ी मुश्किल होती है एज में। यहां बहुत स्पेसिफिकली सोचना है, क्योंकि फेसबुक 25 से लेके और 45 तक के लोग, 18 to 45 जनरली ज्यादा हैं। 18 वाले भी कम होते जा रहे हैं, वो इंस्टा पर शिफ्ट हो रहे हैं आजकल। तो ये जो कैटेगरी है जनरली 20 to 45, अगर आपके प्रोडक्ट का टारगेटेड क्लाइंटेल ये है तो फेसबुक पर जाएं। अगर इससे आगे पीछे जा रहा है तो फेसबुक आपको एड रन कर देगा, बट बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। तो यू सी, इन केस आपका, क्योंकि मेजोरिटी में बाइंग सेक्शन यही होता है 50 तक। तो आपको 50 तक का अगर आपको लगता है कि मेरा कस्टमर क्लास ये है, तो आप डिसाइड करो। और इसमें 1 साल भी बहुत बड़ा अहम रोल लगाता है।
एक साल भी आपका हजारों रुपए बचा सकता है और लाखों कमा सकता है। तो आप बहुत स्पेसिफिक होके ये अपनी बाउंड्री बनाएंगे कि मेरा कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में मेरा क्लाइंटेल मिलेगा मुझे उस भीड़ में से। तो आप प्लीज उसका एज लिखेंगे। एंड थर्ड वन इज लोकेशन, किस डेमोग्राफी में आपका वो क्लाइंटेल मिलेगा। आइदर यू वांट टू सेल इन बैंगलोर, और यू वांट टू सेल इन दिल्ली, और इन द मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया, और इन बी क्लास सिटीज इन इंडिया, और स्पेसिफिक पानीपत, रोहतक, चंडीगढ़, लुधियाना, बेंगलुरु, जहां भी आपको बेचना है वहां आप जुड़े उसमें, उन लोग उसको आप डिसाइड करें। कल मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूं कि ये कैसे बेनिफिट करने वाला है आपको। एंड थर्ड वन, आप उसकी रेडियस ले सकते हो। इफ यू आर ऑपरेटिंग इन बेंगलुरु, then and in case you want to target the area which is in 50 kilometers radius, so you can take that। जरूरी नहीं है स्पेसिफिकली बेंगलुरु लो, तो आप बेंगलुरु के 200 किलोमीटर का रेडियस भी ले सकते हो, आप दिल्ली के 200 किलोमीटर का रेडियस ले सकते हो, आप भोपाल के 300 किलोमीटर का रेडियस ले सकते हो। तो ऐसे करके भी आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। ये तीन चीजें आपको डिसाइड करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक एस्पेक्ट आता है, दैट इज इंटरेस्ट। क्योंकि फेसबुक जज करता है लोगों को, आपका ऐड वहीं चलाएगा जहां लोगों ने इंटरेस्ट फीड किया है। तो अब लोगों का इंटरेस्ट, एजुकेशनल इंटरेस्ट है लोगों का, या कोई पर्टिकुलर हॉबी है, आपको वो सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने प्रोडक्ट के लिए एग्जांपल दूं कि ट्रेनर्स हमारा टारगेट है, टीचर्स हमारा टारगेट है, स्टूडेंट्स हमारा टारगेट है, हाउस वाइफ्स हमारा टारगेट है, और हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स हमारे लिए टारगेट हैं, और एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स हमारे टारगेट हैं। तो ऐसे ही आपका कौन सा टारगेट है? पेरेंट्स होंगे, टीचर होंगे, एजुकेशन के लोग होंगे। तो वो कैटेगरी इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको कैटेगरी निकालनी है। उतनी कैटेगरी निकालो जितनी आपको ला सकें। आप प्लीज सारी कैटेगरी लिखना, और हो सकता है आप 20 कैटेगरी, 30 कैटेगरी, जो भी आपको क्लाइंटेल जहां भी मिलता हो, वो सारे वर्ड्स आपको एक पेज पे लिख लेने हैं। और उसमें से आपको देखना है कि कौन से वास्तव में हैं जहां से आपको रिजल्ट आ सकता है, और कौन से ऐसे हैं जहां से रिजल्ट कम आएगा। जो कम आएगा उसको अभी हटा देना, सिर्फ गोला कर देना उस पर, प्लीज उस पर सिर्फ राउंड करना है, ताकि बाद में उन पर एक बार टेस्टिंग करनी है आपको। हो सकता है आपका बिजनेस वहां से आ जाए। तो आप ये प्रोफेशन, कैटेगरी, इंटरेस्ट लोगों का ये डिसाइड कर लेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। लोकेशन जैसे यहाँ लिखा है, 30 किलोमीटर की रेडियस की किसी स्कूल की लोकेशन से, किसी शहर की लोकेशन से। एज बार ले सकते हो आप 35 to 50, जेंडर मेल फीमेल ले सकते हो। लैंग्वेज बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अगर मैं लैंग्वेज पे लूँ और हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की और साउथ इंडिया मैंने अपना सेलेक्ट कर रखा है, तो आपका पैसा बेस्ट जाने वाला है। और अगर मैंने इंग्लिश लिया और पूरा नॉर्थ इंडिया ले रखा है, तो मेरा पैसा बेस्ट जाने वाला है, मुझे यहाँ बाइलिंगुअल लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके लैंग्वेज का हमें एक एस्पेक्ट भी देखना है कि कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है मेरा टारगेट होंगे। और प्लस B2B होंगे या B2C होंगे, मेरा एंड कस्टमर टारगेट होगा या मेरा किसी बिजनेस को मैं टारगेट करने वाला हूं। तो B2C यहां बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है B2C का। B2B का रिजल्ट फेसबुक पे कंपेरेटिवली कम है। तो अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस B2C है, यानी बिजनेस टू कस्टमर है डायरेक्ट, तो यहां आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एंड एक लास्ट चीज है, आपके कस्टमर की कैटेगरी और इंटरेस्ट निकालने के लिए आप ये डिसाइड करना कि ऐसे कौन से कस्टमर के पेन पॉइंट हैं या नीड है जिसकी वजह से वो फेसबुक पे हो सकता है, और आप उसको कैसे रिलीव कर सकते हैं। बस ये 7 चीजें आपको डिसाइड करनी है एक्सरसाइज 3 में, और आपकी ये एक एक्सरसाइज परफेक्ट हो जाएगी, जिसे हम कल यूज करने वाले हैं अपना एड डिजाइनिंग में। तो ये अगर आप कर सकेंगे तो ये बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। कुछ लोगों के क्वेरीज भी है, प्लीज मेक श्योर ये जो एड डिजाइनिंग हम लोग पूरी सीखेंगे, एड डिजाइनिंग कैसे करना है, किस हिसाब से करना है और लोकेशन कैसे चूज करना है। बट आप बहुत लोग ऐसे होंगे, अच्छा कितने लोग हैं जो फेसबुक पे मार्केटिंग करने के लिए डू नॉट वांट टू स्पेंड एनी सिंगल पेनी, जस्ट टाइप आई इन द कमेंट सेक्शन। साहब
ऐड तो चलाना, पैसे नहीं खर्च करने। जस्ट अ पाई इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट अ पाई, ओके। 2 ही लोगों ने कम लोग हैं, ओके। देखिए ध्यान रखना, जब आप कहेंगे कि ऑर्गेनिक एड्स, ऑर्गेनिकली आप ग्रो कर रहे हैं, तो मतलब बिना पैसे लगाए ग्रो कर रहे हैं, समझिएगा प्लीज। फेसबुक में ग्रो करना ऑर्गेनिक बहुत आसान है, बट इट विल टेक सम टाइम, समझिएगा, कुछ समय लगेगा। तो ऑर्गेनिक मतलब जब बिना पैसे आप खर्च करे आप कर रहे हो। इनऑर्गेनिक मीन्स जब आपको कुछ अमाउंट खर्च करना पड़े, जब कुछ अमाउंट खर्च करना पड़े। तो जब आप पैसे खर्च करोगे तो ऑब्वियसली सॉरी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, बट उसमें आपके पैसे जाएंगे, लक्ष्मी जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, और इफ यू हैव टाइम, और इफ यू हैव एनी समवन इन योर टीम दैट कैन डेडिकेट 1 or 2 hours डेली बिल्डिंग द ऑर्गेनिक ऑडियंस, आप यकीन नहीं करोगे, विद इन 4 month, 4 या 5 महीने में आपके पास अपनी खुद की बहुत जबरदस्त ऑडियंस होगी। तो इसको करना होता है ऑर्गेनिकली, आप अपनी ऑडियंस को बिल्डअप कर रहे हो, और ये बहुत ही इजीली हो सकता है, इफेक्टिवली हो सकता है फेसबुक पे स्पेशली। आप में से कितने लोगों ने फेसबुक पे वीडियो ऐड आने देखे हैं? पहले वीडियो ऐड नहीं आते थे फेसबुक पे। कितने लोगों ने देखे हैं कि यस, वीडियो ऐड देखे हैं आप लोगों ने किसी ने प्लीज? ओके, अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, कितने लोग हैं जो पर डे सर्टेन अमाउंट टाइम यूट्यूब को छोड़ के फेसबुक एड्स देखना, फेसबुक के वीडियोस देखते हैं? आप अपना टाइम मेंशन कर दीजिए किसी भी, मैं डेली बेसिस पे अप्रॉक्स कि लगभग इतना इतना टाइम में देता हूँ प्लीज। मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा नवीन जी बाद में, जब टाइम पॉइंट पे आता जा रहा हूँ। प्लीज, कितना टाइम आप अप्रॉक्स देते हैं फेसबुक पे वीडियो वॉच करने पे? वीडियो वीडियो अभी आप फेसबुक खोलते हैं तो अप्रॉक्स, मैं डेली का पूछ रहा हूँ, डेली का। प्लीज सभी लोग लिखिए, जो नहीं देते जस्ट टाइप नो इन द कमेंट सेक्शन, सबके लिए कंपलसरी प्लीज एक्सरसाइज। रहीजा जी का सब आ गया, बाकी लोगों का नहीं है, कितना टाइम देते हैं? लक्ष्मी जी देखते नहीं है, अप्रॉक्स 10-20 मिनट, 45 मिनट। प्लीज सभी लोग प्लीज टाइप करें। ओके, 10 मिनट फेसबुक वीडियोस पे स्पेशली। ओके, अलग अलग है। तो अगर आप देखें, मैं जस्ट यहाँ से लिंकअप करना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान दें, फेसबुक पे जो लोग वीडियो अपलोड करते हैं, उनके फेसबुक पेज पे लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, 10,000 फॉलोअर, 20,000 फॉलोअर, ऐसे फॉलोअर्स, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और कुछ उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके खुद के वीडियोस नहीं है। आप देखिए, खुद के वीडियोस नहीं है बट फॉलोअर है। और ध्यान रखना, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। जब आपके पास ऑडियंस है तो आप सब कुछ बेच सकते हो। ऑडियंस होना बहुत बड़ी बात है, अगर वो फ्री में मिल रही है तो। अगर आप देखें, मैं क्लिक करूंगा इसको। सॉरी, माफ करना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, खांसी बहुत ज्यादा है। ये कोई वीडियो में चला है, जैसे ये वीडियो आप देख पा रहे हो, कोई भी अलग अलग वीडियोस है जो आपके आ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इस पे पेज पे गया मैं इसके। अगर आप पेज पे मैं गया तो आप ये देखेंगे, इसके पेज पे अप्रॉक्स बहुत सारे लोग होंगे जो इसकी ऑडियंस होगी। जस्ट मिनट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। आप देखिए, इसके जो है लगभग 1,28,000 लोग इसके पेज पे, 1 लाख लोग सब इसके पेज पे। तो इन्होंने क्या किया है, वीडियोस डाले हैं अलग अलग। और ये भी हो सकता है बहुत सारे वीडियोस इनके खुद के ना हो। प्लीज समझिएगा प्लीज, बहुत सारे पेज आपको रैंडमली ऐसे मिल जाएंगे, अगर आप क्लीनली ऑब्जर्व करो, उनके वीडियोस खुद के हैं ही नहीं, कहीं और से कॉपी पेस्ट किए, वो शायद फिल्मों को हो सकता है वो कुछ, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे तो वीडियो की स्ट्राइक तुरंत आ जाती है। फेसबुक ने इतना एल्गोरिथम अपना डेवलप नहीं कर पाया, प्लीज मेक श्योर, फेसबुक का एल्गोरिथम इतना डेवलप नहीं है जितना फेसबुक का इन टर्म्स ऑफ वीडियोस। तो अगर आप कुछ भी वीडियो कंटेंट बनाते हैं या कुछ भी वीडियो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ रखते हैं, धीरे धीरे ऑडियंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्लीज, मैं भी क्लास में हूँ, प्लीज बाद में कॉल करूंगा आपको। तो आप ये देखिए कि
1 लाख की ऑडियंस बिल्डअप की उन्होंने। अब मैं आपसे छोटा सवाल पूछता हूँ, अगर ये कुछ भी सेलिंग करना चाहेंगे, क्या ऑडियंस के पास, क्योंकि जो भी आप वीडियोस देखते हो इस पे, जो आपने रिकरिंग वीडियोस दिए, इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है इनका, वो आपको दोबारा उसके वीडियोस दिखाता है। तो ऑडियंस बिल्डिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आप क्या चीज़ बताना चाहते हो, उसके वीडियोस, उसकी पोस्ट, ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपने ये देखा, इसी हिसाब से अगर कोई और वीडियो मैं खोलूँगा, लिटरली कोई भी, सपोज़ कोई फ़िल्म का वीडियो खोलूँ, तो आप देखेंगे बहुत सारे में लिटरली बहुत बड़ी क्राउड है। ये तो सिंपल एक एक छोटा-सा एक प्रैंक का वीडियो देखिए, बहुत सारी क्राउड है जो लिटरली छोटे-छोटे वीडियोज़ आप बना के डालेंगे, या कोई वीडियो कहीं से आप कट कॉपी पेस्ट भी करेंगे, तो आप अपनी ऑडियंस बिल्डअप कर सकते हो। ये सबसे बड़ा ईज़ी तरीका है ऑडियंस बिल्डअप करने का, जो मैं ऑर्गेनिक बता रहा हूँ। जस्ट आप देखिए इसके पेज पे कितने लोग हैं, 31 लैक्स, ठीक है? इतने लोग हैं इसके। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ, आप इस तरीके से भी ऑडियंस बिल्डअप कर सकते हो, अपने वीडियोज़ से, बाहर के वीडियोज़ से, जहाँ से आप ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएँ। अब इसमें काम क्या, भई आपको कुछ न कुछ सेलिंग करनी है, तो सेलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, सेलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ न कुछ कस्टमर को वैल्यू एडिशन दें। कहते हैं ना, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, मुफ्त का चंदन घिस मेरा नंदन। जब तक आप उनको चंदन नहीं दोगे, तो आपके पास सत्या, टिकेगी सत्या ये पेज मुझे वापस दिखाना अपना, नहीं। कौन-सा पेज सर? जो फेसबुक पे ओपन था अभी। अभी दोबारा दिखाऊँ? यस 2 प्लीज। मिनट सर। मुझे बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। आप पेज दिखाओ, बस पेज बस। आप ये देखेंगे सत्या का पेज यहाँ है क्या? सत्या एक ट्रेनर, आप साइकोलॉजी इस पेज पे आपको, और सत्या इस फेसबुक के पेज को ओपन करते हैं कि अपनी नेटवर्किंग के लिए। सत्या कुछ नहीं क्लिक करना है आपको प्लीज, हाँ, एंड यू विल सी कि सत्या के राइट साइड पे 2 ट्रेनर्स की ऐड आ रही है। यस सर। और सत्या ने कभी भी, सत्या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इन दोनों लोगों के नाम भी नहीं जानते, नहीं सर, नहीं जानते ना? नहीं सर। बट बिकॉज सत्या का फील्ड डिजिटल मार्केटिंग है एंड सत्या इज प्रैक्टिसिंग डिजिटल मार्केटिंग, आप फेसबुक की अपनी प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम देखो बैकएंड में, किसी आदमी ने ये प्रोग्रामिंग नहीं की, ना ही सत्या ने फेसबुक पे कभी किसी ट्रेनर को सर्च किया है। बट सत्या के राइट साइड में आप देखेंगे 5-day एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एट जस्ट ₹199, bingmarketing.com, और लर्न टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स विद प्रूवन टेक्निक्स, फेसबुक फनल वर्कशॉप। आप देखो कितने वंडरफुली। अब जो एक क्वेश्चन पूछा था अभी लक्ष्मी श्रीनिवास जी ने कि पेन पॉइंट का क्या मतलब है, कस्टमर पेन पॉइंट का, यहाँ लॉजिक देखो। सत्या का पेन पॉइंट क्या है? फेसबुक ने अंडरस्टैंड किया कि सत्या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इनका कुछ है, इनके पेज पे या तो लोग वो सर्च करते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग चाहते हैं या करते हैं या सीखते हैं। और सत्या इको आ रही है क्या मेरी तरफ से? नहीं सर। अच्छा, मुझे इको आ रही है। हाँ, तो अब उसने जज किया, और जज करने के बाद सत्या को सेम कैटेगरी के एड्स डिस्प्ले किए, क्योंकि सत्या के पास अभी यहाँ कोई दूसरा एड नहीं भेजा, बहुत स्पेसिफिकली वही लाया है जो सत्या का पेन या रिक्वायरमेंट हो सकती है। समझना, या तो सत्या का पेन रिलीव कर सकता है, और या सत्या की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है, या सत्या को ग्रोथ दे सकता है। अब इन लोगों ने, अब ये क्यों आया ऐड यहां? यस, इन लोगों के लिए ये सत्या के लिए ऐड क्यों आया? क्योंकि सत्या इस फील्ड से है, और इन लोगों ने, सत्या ने जो अपना इंटरेस्ट फिल कर रखा है ना, जब फेसबुक ऐड बनाई थी तो सत्या ने वहां डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया था, और जब ये साइड में ये जो दोनों ट्रेनर हैं, जब ये अपना ऐड डिजाइन कर रहे थे, तब उन्होंने वहां एक कीवर्ड डाला जिसकी मैं बता रहा था आपको। वहां उन्होंने इंटरेस्ट में लिखा, ठीक है, इंटरेस्ट में लिखा था डिजिटल मार्केटिंग। तो जिस जिस आदमी का डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट रहा होगा, या फेसबुक ऐड रहा होगा, या मार्केटिंग इंटरेस्ट रहा होगा, उन सब लोगों के साइड में ये एडवर्टीजमेंट शो होगी। और ये बिल्कुल सटीक टारगेटिंग हुई, बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट, बहुत ही प्रिसाइज टारगेटिंग है। सो इजंट दैट अ वेस्ट ऑफ मनी? नो, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी मैम। यहां बिल्कुल सटीक टारगेट।
मेरा क्वेश्चन है कि अगर अभी अभी यही जो एग्जांपल आपने दिया है, सत्या सर तो एक डिजिटल मार्केटिंग का ही ऐड दिखा रहा है, ठीक है? तो फायदा क्या है, बिकॉज सत्या सर तो एक्सपर्ट खुद है, तो ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। Exactly, that you are absolutely right, but अब फेसबुक को कॉम्पिटिटर नहीं पता, फेसबुक को तो ये पता है कि इंटरेस्ट में डिजिटल मार्केटिंग किसके है, उसको शो करेगा ले जाके। समझना, फेसबुक में कोई आदमी नहीं बैठा, वहां एक लॉजिक काम कर रहा है बैकग्राउंड में। आपने इंटरेस्ट लिखा, लक्ष्मी श्रीनिवासन मैम ने लिखा कि आपके इंटरेस्ट क्या है, बोला डिजिटल मार्केटिंग मेरा इंटरेस्ट है, वैदिक मैथ्स मेरा इंटरेस्ट है, मेमोरी मेरा इंटरेस्ट है। तो जो आपने इंटरेस्ट लिखा, उसी इंटरेस्ट के पे अगर किसी ने कीवर्ड डाल के अपना इंटरेस्ट है डेमोग्राफी डाला, सत्या प्लीज आप अपना ऑफ करेंगे उधर से, माइक ऑफ कर दो बस, इको आ रहा है मुझे। हाँ, तो जैसे ही उनके वो दोनों कीवर्ड मैच करेंगे, वहां ये एड डिस्प्ले होगा। तो ये इसकी लॉजिक है बैकग्राउंड में, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि वो कॉम्पिटिटर है उसका, इसको तो ये पता है उसका इंटरेस्ट ये है, तो वहां दिखाई देगा। अब यहाँ बेस्ट ऑफ मनी नहीं है, बेस्ट ऑफ मनी इसलिए नहीं है बिकॉज सत्या को अगर इस पर क्लिक नहीं करना तो आपका पैसा वेस्ट नहीं हुआ। अगर आपने लीड जनरेशन ऐड चलाया है और सत्या इस पर क्लिक करते हैं तो ही अगर क्लिक ऐड चला, अवेयरनेस ऐड चलाया है तो क्लिक किया तो पैसा खर्च होगा, और लीड जनरेशन ऐड चलाया है तो आपने लीड फिल कर दी तो पैसा खर्च होगा, सेल्स ऐड चलाया है तो आपने कुछ खरीद लिया तो पैसा खर्च होगा, अदरवाइज आपका पैसा खर्च नहीं होगा। तो आई थिंक ये क्लैरिटी है सबको। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? देखिए, ये जो आप फेसबुक का जो एड्स आते हैं, कई बार आप बहुत सारे ऐप्स में क्लिक करते होंगे, वो फेसबुक से लिंक हो जाती है। तो फेसबुक इनडायरेक्टली आपका बहुत बड़ा डेटा जो फेसबुक पे नहीं, एक तो फेसबुक पे सर्च करते हैं, दूसरा बहुत सारे ऐप्स आप खोलते हैं जिसमें लॉगिन मांगता है, तो आप फेसबुक से लॉगिन कर देते हैं। तो जैसे आपने फेसबुक से लॉगिन किया, बहुत सारा आपका जो आपने सर्च किया था डेटा, वहाँ सर्च हिस्ट्री, वॉच टाइम हिस्ट्री ऑटोमेटिकली बैक एंड में वो लोग शेयर कर देते हैं। जो आपको अगर बताऊंगा कि कितना डेटा शेयर होता है फेसबुक का आपको, तो आप लिटरली हैरान रह जाओगे। तो फेसबुक के अलावा जो आप सर्च कर रहे हो अलग अलग एप्लीकेशंस पे, उसका भी डेटा इनडायरेक्टली फेसबुक के पास जाता है, वो डेटा माइन करता है, उस डेटा के हिसाब से, उसके एल्गोरिथम के हिसाब से आपको उस पार्टिकुलर चीज की एड प्रोवाइड की जाती है। ये बहुत जरूरी है। तो अभी तो आपने देखा कि भाई ऑडियंस में इसके साथ साथ फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ऑडियंस, अभी आपकी पूरी क्लास होगी भी ऑर्गेनिकली आप ऑडियंस कैसे बिल्डअप कर सकते हो। भाई आप में से बहुत लोग हैं अलग अलग कैटेगरी के, प्लीज आप कैटेगरी लिख लें किस टाइप के आपको ग्रुप चाहिए फेसबुक। जस्ट वो टॉपिक टाइप कीजिए, मैं इसमें टाइप सर्च करके दिखाऊंगा। प्लीज कोई भी टॉपिक आप लोग चूज कीजिए, कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छा लगे, कोई भी टॉपिक मैं इसमें सर्च बार में डालूंगा। कोई भी ऑडियंस, स्टॉक मार्केट, मैंने स्टॉक मार्केट ग्रुप में डाला, तो आप देखिए स्टॉक मार्केट के इतने सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। 3 लाख लोग हैं इसमें, 80,000 लोग हैं, ठीक है सर। आप लिटरली आपके पास पूरी ऑडियंस आ जाएगी बहुत बड़ी, जिसपे आप देख पा रहे हो लिटरली बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अब मेजोरिटी प्राइवेट ग्रुप हैं, प्राइवेट ग्रुप होते हैं जिनमें आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जैसे मैं क्लिक करूंगा एंट्री के लिए ज्वाइन ग्रुप पे, तो लिटरली वो कुछ न कुछ सवाल पूछेगा मुझसे, वो मुझसे कुछ न कुछ सवाल पूछेगा। तो अगर आप सपोज एक टॉपिक है, आपने 25-30 ग्रुप ऐड कर लिए, आपने एंट्री ले ली, और इन ग्रुपों में कई बार वो लोग पोस्ट डालना अलाउ करते हैं, कई बार पैसे मांगते हैं। पैसे डायरेक्टली तो नहीं मांग सकते, बैक साइड से मांगे जाते हैं पैसे। तो अगर इन दो ऐसे किसी ग्रुप में आपको एंट्री मिल जाए जहाँ लगभग 50-60 हजार लोग हों मिनिमम, देखिए सब में आप देखिए अलग अलग ग्रुप, अलग अलग मेंबर्स हैं, किसी में 1.5 लाख है, किसी में 4,000 है, अलग अलग है। इसी हिसाब से मैडम ने हीलिंग डाला था, मैंने हीलिंग टाइप किया, हीलिंग ग्रुप्स मैंने डाला, ठीक है। लीजिए आप टॉपिक टाइप कीजिए, 50,000 लोग हैं, 22,000 लोग हैं, बहुत लोग हैं, इतने काफी सारे लोग हैं, ठीक है। अब हीलिंग ग्रुप मैंने क्या किया, यहाँ डाल दिए पब्लिक जहाँ सब लोग के लिए, मैं प्राइवेट चाहिए नहीं, लिटरली आपके पास पब्लिक ग्रुप भी आ जाएंगे। तो देखिए पब्लिक ग्रुप है, इसमें इतने लोग हैं, आप देखिए
बहुत सारे ग्रुप आपको मिल जाएंगे जहां आप एक या दो पोस्ट दिन का आप डाल सकते दिन का पोस्ट डाल सकते हो, और वहां से, बट उसके लिए बहुत जरूरी है आपके पास खुद का कुछ ना कुछ कंटेंट हो, जो मैंने इनिशियली मेंशन किया था, वीडियोस हो, आप हो, कुछ भी जो आप उनको एड ऑन देना चाहते हो। लैंग्वेज आप देखिए, किस लैंग्वेज में आप बताना चाहते हैं, कौन कौन से वीडियोस देना चाहते हैं। अगर वीडियोस देख के आपके लोग पेज पे आते हैं, फेसबुक पेज पे तो क्या क्या एक्स्ट्रा आप ऑफर करेंगे, ई बुक ऑफर करेंगे, क्या फ्री वेबिनार्स ऑफर करेंगे, कितना इंटरेक्शन बनाओगे कम्युनिटी फेसबुक ग्रुप में। फेसबुक पेज अलग है, फेसबुक ग्रुप अलग है, तो ये बहुत जरूरी है। प्लीज आपके लिए एक और असाइनमेंट ये रहेगा कि कोई भी 10 टाइप के ग्रुप आपको सोचने का, इस ग्रुप में मुझे एंट्री लेनी है। 10 टाइप, सब स्टॉक मार्केट का आपके एरिया है, तो स्टॉक के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, ये भी साइड बाय साइड चलता है। अगर आप हीलिंग पे जा रहे हैं तो मेडिटेशन आपका होना चाहिए, ऑरा हीलिंग हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, कहीं ना कहीं लिंकअप कर रहा है। आपका कोर टॉपिक एक है, पर एक उसके साथ साथ 9 टॉपिक आपको और एक्स्ट्रा लेने हैं जहां से ऑडियंस आपके पास आ पाए। तो ये बहुत जरूरी है। वहां वीडियोस काम करेंगे आपके, जहां आप ऑर्गेनिक ऑडियंस बना सको अपनी। ये बहुत जरूरी है कि अपनी पोस्ट ऐसे ग्रुप में पॉइंट आउट करें, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन की पोस्ट